this I, yes, 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 Mohit. सर पिछली बार पासबुक और वो ओवरड्राफ्ट वाला किया था, शायद डेप्रिसिएशन चालू करें। हाँ शायद नहीं, कंफर्म मैंने बताया था फ्राइडे के दिन से हम लोग डिप्रिशिएशन स्टार्ट करेंगे, और वो आपको फोर्टनाइट प्लान शेयर किया हुआ है. So from today we are going to start the depreciation. Okay. So let's talk about the depreciation first of all. So can you tell me what do you mean by word depreciation? If anyone can. Theoretically we will study decreasing value. The Decreasing value decrease of. in value of or assets due to overtime or use. Okay. Okay. So depreciation is a reducing value or fall in the value. Am I correct? Yes, sir. Yes. So students, let me tell you one thing. सबसे पहले हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझें इस तरीके से कि डेप्रिसिएशन जो कंसेप्ट है ना, स्टूडेंट सेज कि डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट. Depreciation is difficult. A number of calculations are there. The students faces problem with the depreciations, but actually I don't believe this, because first of all, for numericals, what you are going to do, you would be practicing, you would be making the journal and laser. Yeah? You would be making the journal and laser. So journal and laser, so you have already learned. Then what is difficult? Difficult is actually the concept. Concept of depreciation is difficult. What is depreciation? Why is depreciation? What is depreciation? Why depreciation is there? And actually, it is little difficult to find out the answer of why. What is depreciation that may be understood? Yeah, depreciation that is fall in the value of asset. But when we talk about, है ना, जब हम लोग बात करते हैं, so then it is very much needed to understand कि why, what does it mean? Yes, so just give me a minute. Okay, so depreciation, that is simple. You can understand students. Depreciation, that is fall in the value of asset due to any reason. The meaning of depreciation is what? Meaning of depreciation is you fix assets due to any reason. Now any reason will be any reason, due to the passage of time, due to the obsolescence, that is upgradation of the technology, due to the wear and tear, due to the accident, or unknown reason. Please understand. Any other known and unknown reason. So it's depreciation. Now whether depreciation is a loss or expenses. Comment someone. Whether depreciation is an expenses or it's a loss. Yes, The loss. it's loss. Okay. Any other student? Any students comment on this? एक बात मुझे बताओ, एक एक मोबाइल है, मोबाइल आपने खरीदा भी, आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, 6 मंथ में उसका वैल्यू का हो गया 5,000 रुपीज, 1 ईयर में उसका वैल्यू हो गया 1,000 रुपीज. तो ये आपके लिए लॉस है या आपका एक्सपेंस है? सर लॉस है ना। नहीं, मोबाइल आपने यूज भी तो किया ना बेटा, किया ना. तो is it
सर वॉइस लैग हो रही है। is there actually. बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है. I do one thing, I just sit near the window. I think it will help. So देखिए सिंपल सी बात, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग कैसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं और इस कारण से अगर उसका वैल्यू कम हो रहा है तब तो वो एक्सपेंसेस, और यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी उसका वैल्यू कम हो गया तो लॉस. सो डेप्रिसिएशन मे बी एन एक्सपेंसेस और मे बी अ लॉस. अगर असेट्स को हमने यूज किया और फिर उसका वैल्यू कम हुआ है तो एक्सपेंसेस है, और रखे रखे किसी असेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाता है देन इट इज लॉस. सिंपल. होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो एक मोबाइल लेकर के आए, हम रोज यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं मोबाइल, और साल भर में अगर उसका वैल्यू कम होता है तब तो वो एक्सपेंसेस है. लेकिन हमने एक कार खरीदी तो उसको ला करके हमने हमारे गैराज में रखी और फिर हम चले गए साल 2 साल के लिए यूएई या बाहर आउट ऑफ इंडिया. अब वो कार हमारे गैराज में ही रखी हुई है, हमने यूज ही नहीं किया उसको. वी हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल राइड. लेकिन 2 साल के बाद में उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी. एम आई करेक्ट? उसकी वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? कमेंट समवन. सर होगी। यस सर होगी. है ना. 2 साल भले ही वो हमने उसको यूज नहीं किया है, हमने नई कार खरीदी, जस्ट हम लेकर के आए शोरूम से, हमने हमारे गैराज में रखा और नेक्स्ट डे किसी रीजन से हमें जाना पड़ा. ठीक है. सो नाउ दैट इज फॉर 2 years इट वाज इन आवर गैराज एंड वी हैव नॉट यूज्ड इवन अ सिंगल डे, बट देन आल्सो इट विल लॉस इट्स वैल्यू. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस. 2 सालों में कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, उसका अपडेटेड मॉडल आ सकता है, कंपनी खुद उसकी प्राइस कम कर सकती है ना. और so many things are there, so that would be the loss in that case. So depreciation could be an expenses or could be a loss, to be very clear. Okay. Now what is depreciation? We have understood depreciation is what? That is fall in the value of assets due to any reason. आप एक चीज समझ लो, depreciation is what? That is fall in the value of assets due to any reason. किसी भी रीजन से. अगर हमारी फिक्स्ड असेट्स का फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, तो उसके ऊपर जो लगेगा उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन. एंड टेंजिबल, इट शुड बी द टेंजिबल. इट शुड बी द टेंजिबल. ओके. अब अपन आते हैं डिफिकल्ट वाले पार्ट पर कि व्हाई डेप्रिसिएशन. इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. स्टूडेंट्स, जब मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन डिफिकल्ट है तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि डेप्रिसिएशन को आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो, जबकि उसको न्यूमेरिकल नहीं, उसको थ्योरेटिकली पढ़िए. डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, हमें जर्नल बनानी है और लेजर बनानी है. आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. कंफर्म दैट वेदर इट इज विजिबल. This is so here you can see students, it is, so you understand this. Generally when solving the questions तो हम लोग थ्योरी को एकदम अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं. लेकिन न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिकल तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरी पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई है, then only you would be able to solve the questions, otherwise you will struggle. So let's understand of all why this we will discuss later. थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक लंबा कंसेप्ट है. सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं.
So what is depreciation? You can see depreciation means fall in the value of tangible assets because of uses, that is wear and tear, effects of time, then obsolescence और accident. कहने का मतलब सारी चीजें आ गई कि किसी भी रीजन से अगर हमारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको अपन कहेंगे डेप्रिसिएशन. नाउ सम सिमिलर टर्म्स आर आल्सो देयर. देखिए एक डेप्रिसिएशन होता है, एक होता है डिप्लीशन, है ना. हमें ये भी समझना है कि डिप्लीशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, एंड ऑब्सोलेंसेस क्या होता है. ठीक है, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो डेप्रिसिएशन वी हैव अंडरस्टूड. Now we need to understand, students, कि depreciation, cause of depreciation and objective of providing depreciation. Depreciation लगाने की जरूरत क्या है? हमने एक assets purchase की है 5 लाख रुपीस की. अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड एवरीवन. इसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा, है ना. पहले आप सुन लो अच्छे से, फिर मैं आपसे पूछूंगा. न्यूमेरिकल्स तो बहुत सिंपल है, वो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो, क्योंकि जर्नल आप लोगों ने सीख लिया, लेजर आप सीख लिया, टोटल और बैलेंसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. बस वही तो करना है, नहीं है. Depreciation, wear, tear, effects of time, obsolescence, or accident, damage, or something like. Now, objective, please mind it, students. तो मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती हो क्या कि डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्या है. यस भाई, हमने 5 लाख रुपीस की एक मशीन खरीदी. जो हमारे सप्लायर थे या वेंडर थे, उन्होंने कहा है कि ये मशीन 10 ईयर तक यूज होगी. हमने उनको 5 लाख रुपीस कैश में पेमेंट कर दिए या बैंक से पेमेंट कर दिए. वो मशीन हमारी शॉप पे या हमारी फैक्ट्री में आ गई. We would be using this machine, है ना. For 10 year we would be using this machine, and after 10 year जब वो मशीन खराब हो जाएगी या फिर मशीन वो यूज करने लायक नहीं रहेगी, then we will put out of use. We will put out of use. We will purchase the new machine after 10 year. So why we need to record a depreciation? See, depreciation is not the actual transactions. Do you understand this? क्या ये कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन है क्या? एक्चुअली कोई लेन देन है क्या ये? Somebody confirm. क्या है ये? एक This is just a book entry, है ना. This is just a what? It's a book entry. Accounts में हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना. तो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस तो है नहीं, इसलिए ना तो कैश बुक में आता है, ना परचेस में, ना सेल्स बुक में, ना परचेस रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में. जर्नल प्रॉपर में जाएगा क्योंकि बुक एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है. तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, है ना. ये मैंने पहले इसको स्क्वायर में किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये आपकी बुक रेफरेंस बुक ही है. सो हमें डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्या है? थोड़ा सा इन पॉइंट को पढ़िए और मुझे समझाइए कि भाई 5 ईयर या 10 ईयर के बाद में वो असेट्स तो, है ना, 5 या 10 ईयर के बाद में वो असेट्स तो वैसे भी यूज के बाहर हो जाएगी. देन व्हाई वी नीड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन? यू प्लीज गो थ्रू दिस. यस, स्टूडेंट्स कैन टेल मी. अब देखो, ये आपको कब समझ में आएगा? जब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपरली स्टडी किया है. एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न का बिजनेस विल गो फॉर इन्फिनाइट पीरियड. चलो हो गया. एक्रोलजेंस एंड ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड व्हेन अकर, नॉट व्हेन सेटल. हो गया, है ना. तो देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ये पॉइंट दे रखे हैं. असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, शो अ ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, show the assets at their correct value, determine the correct cost of production, retain fund out of profit for the replacement, and comply with the legal
provision. Yes, would somebody will explain this point? थोड़े ये पॉइंट आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? Who will explain this point? अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा क्लास में है कौन कौन. Yes, देवांश. अच्छा. Yes, देवांश गर्ग, if you can answer. देवांश, खुशी, कुंज, मोहित, मस्तन सर, नैतिक, नमन. Yes, नमन. नंदन, निखिल, नंदना, sorry. निखिल, पवन, रिदम, समरीत, टिशा, कुश, राजदेव. He is not on the mic, so he is not hearing anything. हाँ जी बेटा बताइए. Certain correct profit and loss. अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो क्या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा? प्लीज कमेंट. मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नहीं. ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा बेटा आप वुड यू पुट सम लाइट ऑन दिस? गुड आंसर. थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि सभी को समझ में आए. हु इज दिस? सर इधर. Yes, Rhythm. Good. Yes, Rhythm. Would you please explain why we would not be able to get the right profit or loss if you are not charging the depreciation? Any other student? देखो students, मैंने क्या बताया आपको? What is depreciation is very easy to understand. But why depreciation? That is actually to understand. देखिए अब आप समझो इसको ध्यान से सभी लोग, है ना. मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी थ्योरी है जो कुछ भी है. न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी है, जर्नल और लेजर. देखिए क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोगों ने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ रखा है. कौन बताएगा मुझे व्हाट डू यू मीन बाय मैचिंग प्रिंसिपल? व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? प्रॉफिट निकालते हैं सर, जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस. हाँ, revenue of particular year should match with the expenses of that particular year. Am I correct, Mohit? Yes sir. है ना. Matching principle, that meant to say the revenue and expenses should be taken from same accounting year or same period. मतलब अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने रेवेन्यू तो 1 महीने का ले लिया और एक्सपेंसेस 4 मंथ के ले लिए. वो जस्टिफाइंग नहीं होगा. अगर हमें अप्रैल मंथ का हमारा प्रॉफिट पता करना है तो भाई अप्रैल में कितना अपना रेवेन्यू है और अप्रैल में कितने अपने एक्सपेंसेस हैं. अब अगर रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस इज मोर देन द रेवेन्यू सो लॉस. सो मैचिंग प्रिंसिपल. अब समझो बेटा इन चीजों को, है ना, कि हमने मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, 2021 में हम लोगों ने एक कोई प्लांट परचेज किया जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डेप्रिसिएशन इज दैट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. बार बार हम ये एक ही बात दोहराएंगे नहीं, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना, है ना. सो 2021 में हमने 10 लाख रुपीस का एक प्लांट परचेज किया. अब ये प्लांट, कंपनी इज गिविंग अस द गारंटी दैट कि दिस प्लांट विल, द यूजफुल लाइफ of this plant or this plant will be in the working condition till 10 year, कि 10 साल तक ये प्लांट अच्छे से काम करेगा, या मशीन या जो भी कुछ है whatsoever. So देखिए 10 lakh rupees we have spent in this year. So do you think this 10 lakh rupees is expenses for this year only? जिनको समझ में आ रहा है थोड़ा सा हाँ नहीं का जवाब दो. मोहित की आवाज आ रही है मुझे, बस बाकी लोग क्लास में नहीं है, गए लंच करने. मतलब 10 लाख रुपीस का जो हमने, ओ जी धन्यवाद. सो 10 लाख रुपीस का हमने जो प्लान खरीदा है, दैट इज नॉट ओनली द एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर. वो केवल इसी साल का एक्सपेंसेस नहीं है, उसके बेनिफिट्स तो हमको आने वाले 10 ईयर तक मिलने वाले. तो वेदर इट शुड बी कंसीडर द एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर, इज इट जस्टिफाइंग टू कंसीडर द एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर? टेल मी. नो सर.
तो क्या होना चाहिए? सर वो 10 ईयर्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। हाँ, 10 ईयर में डिवाइड हो जाना चाहिए कि भाई अगर 10 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस हैं या 10 लाख रुपीस का प्लांट हमने परचेज किया है, वो 10 ईयर तक काम करेगा, तो अपन एक काम करें, 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर साल पर स्प्रेड कर दें उसकी कॉस्ट, है ना? नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 2021 में तो अपन एकदम से लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि 10 लाख का तो हमने एक प्लांट ही खरीद लिया, तो हमारे एक्सपेंसेस तो पहाड़ जैसे हो जाएंगे एक्सपेंसेस, ठीक है ना? और रेवेन्यू जितना होना है उतना ही होगा, जबकि नेक्स्ट ईयर से ये होगा कि नो एक्सपेंसेस ऑन द प्लांट। तो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहाँ फुलफिल हो रहा है ना? सो व्हाई डेप्रिसिएशन, दिस आई एम ट्राइंग टू आंसर यू स्टूडेंट्स। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्यों होना चाहिए या क्यों किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरी वेल सेड, कि 10 लाख रुपीस का अगर प्लांट है और अगर 10 ईयर तक वो चलने वाला है, तो हम उसको 10 से डिवाइड करके उसको 1 लाख रुपीस हर साल के लिए एक्सपेंसेस बनेंगे 2020। हालांकि प्लांट 1 लाख 10 लाख का है, लेकिन करंट ईयर के लिए हम उसका जो एक्सपेंसेस है दैट वुड बी कंसिडर 1 लाख इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। एक, है ना, 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन हमने इस साल रिकॉर्ड कर लिया, देन 1 लाख नेक्स्ट ईयर, देन 1 लाख थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। सो विद इन 10 ईयर वो स्प्रेड आउट हो जाएगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ असेट। So why depreciation, students? This is only the answer of depreciation. Why there should be the depreciation? Just to spread the cost of asset over the useful life of that assets, and to fulfill the matching principle to find out accurate profit and loss. Hopefully you are able to understand. देखो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस। आपकी एसेट्स यूज हो रही है, आपकी एसेट्स यूज हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। एज पर द इनकम टैक्स आपको उस एक्सपेंसेस के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना? फर्नीचर और इन सारी चीजों के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब आपने जितने का फर्नीचर खरीद रखा है उसकी वैल्यू आप हर साल 20% कम कर सकते हो और अपने एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हो। एक्सपेंसेस बढ़ाने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, और आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपको कम इनकम टैक्स लगेगा। यस। अब, है ना? तो अब अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से हम एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं हमारे, तो क्या हमारे एक्चुअली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं क्या? टेल मी। नहीं सर। हमारे एक्सपेंसेस एक्चुअली बढ़ रहे हैं क्या? डेप्रिसिएशन का कोई पेमेंट तो करना नहीं पड़ रहा है किसी को, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, है ना? वी आर राइटिंग ऑफ द असेट्स, so that's why it is mandatory to record the depreciation. So as per the income tax, as per the ICI, अलग अलग असेट्स के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेड होता है। जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, उनके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन लगता है ना? फर्नीचर वगैरह उन पर 20% डेप्रिसिएशन लगता है। मोटर व्हीकल वगैरह इन पर भी 20% डेप्रिसिएशन लगता है ना? आप अपने घर पर मम्मी डैडी से पूछोगे कि हम हमारे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर जो भी वैल्यू, अगर आपकी कार 20 लाख रुपीस की है, लेस 10 लाख रुपीस की कार है, तो ऊपर पहले साल 10 लाख तक इंश्योरेंस कैलकुलेट होता है, दूसरे साल 10 में से 20% का डेप्रिसिएशन माइनस होकर के 8 लाख रुपीस उसकी यूजफुल लाइफ मान करके फिर उस पर वो सम अश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच just to spread the cost of fixed assets over the useful life of that particular asset. अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें प्रॉपर तरीके से, ताकि हमें प्रॉपरली a certain correct profit and loss, उस साल का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़े। शो द ट्रू फेयर वैल्यू ऑफ द व्यू फाइनेंशियल पोजीशंस। देखो पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, आपकी 10 लाख की असेट्स हैं, हमें पता है कि 10 ईयर में वो असेट्स आउट ऑफ यूज हो जाने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली,
है ना? प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ये सब मैं चीजें आपसे मैं पूछूंगा, अभी आप समझ लो, सुन लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे विल डिस्कस इट। तो देखिए 10 लाख रुपीस की एसेट्स है, 10 ईयर हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। देन व्हाट हैपन, 10 ईयर के बाद में दैट एसेट्स वुड बी आउट ऑफ यूज, मतलब वो एसेट्स यूज करने लायक नहीं रहेगी एज पर एज ऑन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद में जो भी हम उसको स्क्रैप वैल्यू में सेल करते हैं, सॉल्वेज वैल्यू में शेयर सेल करते हैं, दिस वी विल डिस्कस लेटर। बट हाल फिलहाल में अगर पहले साल में हम एसेट्स को यूज किया, पहले साल हमने एसेट्स को बैलेंस शीट में बताया कि भाई 10 लाख रुपीस का हमारे पास में प्लांट है, दूसरे साल भी उसको 10 का बता दिया, तीसरे साल भी 10 का बता दिया, 7th ईयर में भी हम 10 लाख रुपीस की एसेट्स उसको शो कर रहे हैं। सो डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइंग कंसिडरिंग द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड रिलायबिलिटी? कि भाई जब एसेट्स की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर एसेट्स को शो करना चाहिए ना। बैलेंस शीट में हम हर साल कैसे 10 लाख रुपीस की का प्लांट बता सकते हैं जबकि उसका वैल्यू तो हर साल कम हो रहा है। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो सेकंड पॉइंट, शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। तो अगर हम एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो जो एसेट्स है वो एक फेयर वैल्यू शो नहीं करेगी। और हमारे अकाउंट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसमें रिलायबिलिटी वाला पोर्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा। आवर अकाउंट्स वुड नॉट बी रिलायबल। नाउ पॉइंट नंबर 3, शो द एसेट्स एट देयर करेक्ट वैल्यू। ये हो गया ऑलमोस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। अच्छा, one question I'm asking to everyone. Try to participate and try to answer. क्या हमें मतलब कि what are the elements of production? ये शायद बिजनेस या इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। Elements of productions क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड हाँ, वेरी गुड। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो मेन, मशीन एंड मनी। मेन दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, मनी दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मशीन दैट इज फिजिकल रिसोर्स। ठीक है ना? मेन, मनी एंड मशीन, 3M, है ना? मटेरियल इज बीन आल्सो कंसीडर, बट उसको भी हम फिजिकल रिसोर्सेज में ले आते हैं, है ना? समटाइम द मटेरियल इज सेपरेटेड। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दिस पॉइंट, इसको ध्यान से सुनो और समझो कि क्या कोई प्रोडक्ट को बनाने में आपको केवल रॉ मटेरियल ही लग रहा है? इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस you are having only variable cost. Tell me if you are able to understand this. क्या क्या लग रहा है? सर वो हर चीज का प्राइस लग रहा है, रेंट का लग रहा है, ट्रांसपोर्ट का लग रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसको बनाने में यूज होती है उसका लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो इसके साथ में वो जो मशीनें उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रही है ना, वो जो मशीन है उसको बनाने में, देखिए रॉ मटेरियल तो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो 100 यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा। सपोज 1 यूनिट बनाने में 1 यूनिट लग रहा है तो 100 यूनिट बनाने में 100 यूनिट लगेगा, और 1000 यूनिट बनाने में 1000 यूनिट लगेगा। ठीक है ना? सो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बट व्हाट अबाउट दिस फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट दैट मीन टू से व्हाट? सी, अब जैसे जो मशीन है या फिर जो व्हाटएवर द फिक्स्ड एसेट्स आर देयर दैट वी आर यूटिलाइजिंग टू प्रोड्यूस दैट गुड्स, तो वो जो मशीनें यूज हो रही है उनकी भी तो यूजफुल वैल्यू ड्यू टू द वियर एंड टियर, उनकी भी तो लाइफ कम हो रही है ना, डेप्रिसिएशन लग रहा है। सो डोंट यू थिंक दैट द डेप्रिसिएशन शुड बी आल्सो कंसीडर्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? मोहित एंड एवरीवन, यस कि जो मशीन है या जो प्लांट है तो उसमें मतलब कि हमने क्या उसको यूज नहीं करना चाहिए? जो मशीनरीज हैं उनका जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड एसेट्स का इन्वॉल्वमेंट कहां पर हो रहा है? ऐसे ही तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, फिक्स्ड रिसोर्सेस। सो
अगर हम कहें कि केवल वेरिएबल कॉस्ट वुड बी कंसिडर एंड नो फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी कंसिडर, then that would be inappropriate calculation, and that would not be the determinations of right price of the product or cost of product. ठीक है ना? मेरे ख्याल से एग्जाम्पल क्लियर है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आप एक कार या फिर एक टू व्हीलर यूज कर रहे हो, उसमें केवल पेट्रोल का ही एक्सपेंसेस थोड़ा है भाई. उस मशीन को या फिर उस मशीन को यूज करने में जो, सिंस यू आर यूजिंग इट, तो उसकी यूजफुल लाइफ भी खत्म हो रही है. So the depreciation is also the part of consideration. Then only we would be able to find it out the cost of or the expenses of affording that asset. Okay. So that is the thing. Next, retained fund out of profit for the replacement and comply with the legal provisions. Point number 5 is there for the sinking fund method. Comply with the legal provisions, matlab ki as per the Company Act, as per the ICI accounting bodies, and as per the income tax authorities, it is mandatory to calculate depreciation. So that is also one of the important points. That's why this depreciation has been charged over this. So hopefully this, you please go to part, especially methods and all this we will understand. Okay, any questions? If you have questions, you can. No, sir. So what is well, आपकी बुक जो रेफरेंस है उस रेफरेंस में बहुत अच्छे से दे रखा है सारी कुछ चीजें, तो आप इसको पढ़ें. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई वुड बी आस्किंग सम क्वेश्चन. एप्लीकेशन वाले चैप्टर में जो मेन फोकस होता है वो थ्योरी वाले पोर्शन पर होता है. देखिए करेक्ट तो आप एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, depreciation charge है, expenses will increase. So actually your expenses is not increasing, it is just a book entry. That is because of the uses of fixed assets. Okay, so the expenses will increase, hence your profit will decrease, and you would be required to pay less taxes or appropriate taxes. Okay, students, now if you have any questions in this, you can ask. Otherwise, let me ask the questions. Yes, Khushi Lohan, understood the concept of depreciation? चलिए बताइए. देवांश आवाज नहीं आ रही है properly. Yes, Kunja Soni, I have not heard you yet. Tell me, beta, what you have understood with the depreciation? What do you meaning by word depreciations? If you can tell. Kunja is not there in the class. Mastan sir. Yes, sir. What do you mean by word depreciation? Sir, decrease in the value of an Decrease in the value of asset. Decrease in the value of fixed assets. देखो सारी assets का value decrease नहीं होता है ना? हम केवल fixed assets को consider करते हैं. Good. Yes, sir. Yes, Natik. है ना? Decrease in monetary Yes, value Natik. due to time. Decrease in the monetary value. Yes. हाँ, ठीक है, बोल सकते हैं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं. कुंज, गुड. Yes, Natik. Yes. So, why do we charge depreciation, Natik? Would you please tell?
थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, बट दैट इज एक्सेप्टेबल इफ यू विल ट्राई एट लीस्ट. Why do we charge depreciation? To match the cost of the product. Very good. Any other students? Because it is incomplete, but okay. Sir, to Good, find out Naman. proper profit and loss. Would you please repeat what was the answer? I didn't catch it. Sir, to find out proper profit and loss. Proper profit and loss. Proper profit and loss of particular. Very good. No, these are the objectives. Very correct. नहीं नमन, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है ना. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ नमन, है ना. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरलाइन दिस आंसर दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट अ मेथड टू वैल्यूएट द असेट, है ना. हम एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, इज डेप्रिसिएशन इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन असेट? आंसर इज नो. डेप्रिसिएशन इज नॉट अ मेथड टू वैल्यूएट असेट, है ना. सो प्लीज माइंड इट. नहीं, दैट इज नॉट, मतलब कि देखिए डेप्रिसिएशन लगा करके आप असेट्स को वैल्यूएट थोड़ी कर सकते हो, है ना. The assets, as per the historical cost concepts, we record the assets for what amounts we have paid to acquire it. Okay. And the depreciation, see, valuation is a different thing, and the charging depreciation, the approach of depreciation is different. Naman, depreciation. अभी मैंने एक question पूछा कि why depreciation? Why depreciations? So the only reason is what? Just to allocate the cost of assets over the useful life of that particular property. कि particular किसी एक year पर expenses का weightage नहीं है, since it is an capital expenses ना, नमन.